So students, welcome to the session, the second session for CSAT the series. I hope you have seen the first video we have posted on the YouTube channel. So basically, we are targeting a UPSC 2025 examination. The examination is around 20-25 days forward, and we have to जैसे कि मैंने बात बताई थी आपसे कि एंड तक लड़ना है. जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए, सीसैट का पेपर जब तक आप देके बाहर ना निकलें, तब तक आपको योर कॉन्शियसनेस बी फोकस्ड ऑन क्रैकिंग द एग्जाम. इवन इफ यू प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, कई बार मॉक टेस्ट दे दिया, पीवाईक्यूज लगा डाले, एवरीथिंग यू हैव डन, देन ऑल्सो जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए. अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, आपको भी वो पेपर्स दिखने चाहिए. पीएससी प्रीलिम्स के 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, राइट. एंड यू हैव टू अचीव पीक परफॉर्मेंस. अगर आप मॉक टेस्ट में 60 मार्क्स लेके आ रहे हैं, वहाँ पे आप 100 मार्क्स लेके, द कट ऑफ इज अराउंड 63% ऑफ. अगर आप 70 नंबर लेके आ रहे हैं, आप 90 नंबर लेके आइए. आपका जो एक्सीलेंस, कहते हैं ना कि वी शुड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, एवरी डे एवरी मोमेंट यू शुड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस. और ऐसा नहीं कि सीसैट का पेपर सब इज़ वेरी इजी. बहुत सारे लोग उसको हल्के में लेते हैं, बट लास्ट टाइम ऑल्सो आई डिस्कस्ड कि बहुत सारे लोग धोखा खाए थे 2023 के, एंड देयर जर्नी ऑफ यूपीएससी एंडेड देयर इटसेल्फ, राइट. आवर कॉन्शियसनेस शुड बी फोकस्ड हाउ टू क्रैक द एग्जाम. So let us start. Many students are with us. Prasad, Hiram, Aditi Sharma, Pooja. Come to the session. Up look, please. You can use the chat box. If you have any question, post in the chat box, or you can unmute and speak. But try to do not create disturbance. You have to raise the hand and then call the name. You can, right? And the chat box is open. Anytime you can post in the chat. Let us start. आप लोग प्लीज़ इफ यू वांट टू इंटरेक्ट, वी कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल लाइक विच प्लेस यू बिलोंग टू, करेंटली आप कहाँ पे हैं, आइडेंटिफाई सम पीपल. बट बाकी लोग यू कैन पोस्ट इन चैट बॉक्स लोकेशन पे आप इंडिया में हैं. मेनी स्टूडेंट्स आर इन लाइक प्रेप आईएएस, मेनी आर इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो. सम स्टूडेंट्स आर इन सिंगापुर प्रिपेयरिंग फॉर यू, समवन इज इन ऑस्ट्रेलिया प्रिपेयरिंग फॉर यू. मेनी पीपल आर स्टूडेंट्स आर देयर. पोस्ट इन चैट बॉक्स. Diti is from Jammu and Kashmir. Azim is again from Jammu. Pooja is from Hyderabad. Saad is from Haveri district, Karnataka. Good. We have people right across from North India to South India. Rishik is from Bangalore. Fine. Let us start the session. Everyone, you are warmly welcome to this session. This is the second session, and today we are focusing on a very important topic of CSAT, that is number system. Let me tell you, this topic is the most important topic for CSAT, right? And why I'm saying this is because number of questions that are asked, you will be like surprised to hear, even if you prepare this single chapter very well, you can crack CSAT, right? Maybe 10 to 20 questions are being asked from your system, right? And like you are aware of the division of syllabus: reading comprehension, then we have logical reasoning, then we have quant. Or okay, many people like attempt all the questions of RC, reading comprehension. We have around 25 questions. You attempt maybe 22, 23 questions, 4 or 5 will be wrong. Mostly like it has been seen that the UPSC answer key varies a lot, even from the coaching institutes answer key it varies. So 4 or 5 questions का difference आ जाता है. Maybe 18 to 20 questions यहाँ पे आपके निकल जाएं, correct, right? Again, logical reasoning, you may be attempting 7 to 10 questions from here, and quant, so again 7 to 10 questions. Total will be around 40 questions. Let me tell you, we just need 27 questions like the exam. 27 questions, right? पूरा logical reasoning छोड़ दो आप, केवल quant के अगर 7 से 10 क्वेश्चन आपने कर दिए, then also this plus this will, this is just a borderline. We have to keep a buffer, right? Buffer नहीं रखेंगे दिक्कत आ जाएगा. यूपीएससी के आंसर की में वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन जो आएगा वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा. यहाँ पे तो फिक्स होता है, एंड समटाइम्स देयर इज अ एरर इन द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन विल गेट एलिमिनेटेड. मैथ्स के क्वेश्चन में अगर एरर होगा विल गेट एलिमिनेटेड, राइट? बट यहाँ पे एरर आएगा, तो वी हैव टू कीप अ बफर ऑफ एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, राइट? 27 का टारगेट है, तो अराउंड 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके
राइट, कुछ गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा, विल बी सेफली क्लियरिंग द सीसैट पेपर, राइट। तो नंबर सिस्टम में यू सी 10 to 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना एक बड़ा नंबर है। अगर आप केवल इसको कर लेंगे, यू कैन इजीली क्रैक सीसैट, राइट। देयर आर मेनी सब टॉपिक्स इन नंबर सिस्टम और दिस फॉर्म्स अ फाउंडेशन ऑल्सो, राइट। वेरियस टॉपिक्स, HCF, LCM questions, right, probability question, within series question, many of them have the foundation in number, right. So this will focus today on number system. So let us start directly with the concepts. We'll be discussing few concepts and then we'll solve the PYQs, right. और देखिए PYQs और syllabus दो चीज़ें हैं UPSC की आँखें। Want to understand UPSC, see the PYQs and see the syllabus. बाकी कोई कुछ भी बोल रहा है, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बोल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आके भाषण दे रहे हैं लोग, डोंट ट्रस्ट एनीवन, ट्रस्ट योर ओन आइज एंड द आइज ऑफ यूपीएससी, दैट इज द सिलेबस एंड पीवाई, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। टुडे द सेशन विल बी अराउंड 1.5 hour. We'll try to wind up the whole topic through the PYQs. There may be some extra things you have to solve at your home also. It's a very big topic. Number system itself will take maybe 5-6 classes to do it properly. So we'll try to cover up as much as we can. So few concepts, I think you are aware these concepts. These are basics. So what are natural numbers? Put in chat box or you can speak also. What are natural numbers? Very simple. Natural numbers 1, 2, 3, 4. So the counting numbers, एक से लेकर आखिरी तक. Go on. Whole number में आप 0 ऐड कर दीजिए. Natural numbers में 0 ऐड कर दीजिए. So 1 and so on. Very simple. Integers are basically all the positive and negative numbers, 0 and positive numbers. It can be right, negative हो गया, 0 हो गया and positive हो गया, that is integer. Then even number आपको पता है 0 to 4 which are divisible by 2 and odd numbers 1 3 5 6, right. Very simple. Prime numbers, what are prime numbers? Anyone? These are basic concepts you must. Very good. Divisible by 1 and the number itself. Only two factors are there, right. What are co-prime numbers? Co-prime numbers. Anyone? Very simple, foundational. Co-prime numbers are relative prime. They are relative prime numbers. So for example, 13 and 14, they can be co-prime numbers. 14 is not a prime number, but these two can be called relative prime numbers or co-prime numbers. Again, you can say 2 and 3 are also co-prime numbers, right. Very simple. These things you should have brushed up, right, before this examination itself. Start examination की अच्छी तैयारी कर लीजिए. There are very less time left, right. Then this composite. What are composite numbers? Anyone? Composite numbers. Prime number के अलावा जो भी number होते हैं, whatever is left apart from the prime number, that simple चीजें. So tell me, is 1 a composite number or a prime number? Is 1 a composite number or prime number? This is a special case. 1 is neither composite nor a prime number. Neither a composite nor a prime number. Composite number, prime number have two factors. Composite may have, and 1 is neither composite neither prime number, right. So moving ahead is a very simple things. UPSC will not directly ask. The question may it can include the concept. सीधा नहीं पूछेगा.
अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन, डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना। इस पे सीधा क्वेश्चन आता है सीसैट में। वन इज प्राइम एंड नॉट, वन इज neither प्राइम neither कंपोजिट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट सीधा क्वेश्चन आएगा और दो तीन अलग से कॉन्सेप्ट्स को मिला देगा इसमें, ठीक है। तो लेट अस हैव अ क्विक रिकैप, है ना। पहला, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर टू, बताइए। डिविजिबिलिटी टेस्ट, कोई नंबर है, नंबर एन, इट कैन बी समथिंग लाइक 3, 6, 8। अब इसको हमें देखना है कि 2, 3, 4, 5, 6 किससे डिविजिबल है, राइट। तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर टू, जल्दी बताइए, वेरी सिंपल। करेक्ट, डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2 और इट कैन बी लाइक 0, 2, अगर ये है। divisibility test of 3, crystal, no, very simple, sum of digits should be divisible by 3, पता होना चाहिए आप लोगों को, इट्स अ वेरी लाइक नॉर्मल थिंग, यू शुड डू दिस। 3 + 4 + 9, इट शुड बी डिविजिबल बाय 3, वेरी सिंपल, राइट। तो 3 के बाद 4 पे आ जाइए। 4 का डिविजिबल टेस्ट बताइए। वेरी गुड, लास्ट 2 डिजिट्स बी डिविजिबल बाय 4, वेरी गुड। 5 का बताइए, वेरी सिंपल। गुड, तजीम इज राइट इन द लास्ट डिजिट या 0 होगा या 5, इसी की जगह 25 होता। व्हाट इज डिजिट टेस्ट ऑफ 25, थिंक। सी 25 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 0 और 25। मूविंग अहेड, 6 का बताइए। 2 and 3 डिविजिबल बाय, एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग। एक तजीब, डिविजिबल एंड 3, ठीक है। 7 इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बाद में बात करते हैं। 8 का बताइए, 8 का बताइए पहले। लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 का बताइए। वेरी सिंपल, 9 का भी सिंपल है, जैसे अपन ने 3 का देखा था वैसे ही 9 का है। लास्ट, सॉरी, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब 7 का बचा, एनीवन वांट्स टू टेल अबाउट 7। प्लीज ट्राई, जस्ट टेल गिव यू सम हिंट, इसको आप देखिएगा, करके देखिएगा। ये तो कोई नंबर है, ए, राइट। तो इसमें 3 3 के पेयर्स बनाए जाते हैं, ऑड सेट्स, ऑड सेट, देन वी चेक, तो एक बार करके देखिएगा। जस्ट चेक दिस, सॉल्व वन क्वेश्चन, कंफर्टेबल इन दिस। और इस तरह का जल्दी एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, तो एक बार करके देख लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट यू कैन। चलिए, लेट अस स्टार्ट।
तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस टुडे। पीवाईक्यूज, तो देखिए यूपीएससी का पीवाईक्यू आप सॉल्व कर लिया, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। बाकी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए, तो कैट लेवल क्वेश्चन डाल देगा आपको, थोड़ा सा लाइक व्हाट वी कॉल इट, मतलब दे वांट टू शॉक द एस्पिरेंट्स, राइट, सो दे मे पुट डिफिकल्ट क्वेश्चन। पूर्वी आप म्यूट कर लीजिए। दे वांट टू शॉक द एस्पिरेंट्स, सो दे विल गिव डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। तो विल स्टार्ट विद द पीवाईक्यूज एंड शुरू के इजी पीवाईक्यूज है, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, राइट। तो फटाफट करते हैं। वी हैव अराउंड 40-45 मिनट्स विद अस। आप लोग प्लीज़ पेन एंड पेपर ले लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो कुछ लोग वीडियो भी ऑन कर लीजिए, इट विल बी मोर इंटरेक्टिव, राइट। एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10, व्हाट इज द रिमाइंडर? ठीक है, पीवाईक्यू ऑफ 2021। कोई भी नंबर होता है, मान लीजिए रैंडम नंबर लिया 6, अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे so this is a decimal place, this is a decimal, it will move towards the left, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट की तरफ, राइट। so now you have to find divided by 10 what is the remainder. Please try 1 minute time, very easy question. और इसमें देख लीजिएगा ये ऑड माइनस डिविजिबल बाय 7 रेड कर लीजिए, वो करके देखिए, वेरीफाई कर लीजिए। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। प्लीज टेल द ऑप्शंस 1, 3, 7 and 9. Solve quickly. चलिए देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। पहले देखिए 3 की पावर 2019, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज अ रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर विल बी बेसिकली द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट होगा, डेसिमल मूव करेगा इधर, दिस विल बी द लास्ट डिजिट, राइट, दैट विल बी द रिमाइंडर। नाउ सी देयर इज अ पैटर्न, देखिए कोई भी क्वेश्चन सी साइड में आएगा लगेगा डिफिकल्ट, बट इफ यू आइडेंटिफाई द पैटर्न, पैटर्न क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे डिफिकल्ट, पैटर्न एक बार देख लीजिए आराम से। दिस इज द पैटर्न, 3 की पावर 1 गेट 3, अगेन 3 की पावर 2 and 27, 81 to 43। अब लास्ट डिजिट का पैटर्न देखिए, 3 4 3 9 7 1, अगेन 3 9 7 1 ऐसे आएगा। फिर इसके बाद भी अगर आप देखेंगे 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, दिस पैटर्न विल गेट रिपीटेड। 3 9 7 1, 4 नंबर्स के बाद सेम पैटर्न रिपीट होता है, दिस इज सेट ऑफ 4 नंबर, ठीक है ना। लास्ट डिजिट अगर बात करेंगे, सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 का सेट है, टोटल 2019 है, 2019 डिवाइडेड बाई 4, तो अराउंड 504 सेट्स हमें मिल गए और 3 नंबर्स बच गए, राइट। 3 इज द रिमाइंडर हेयर, यानी कि 504 यानी 3 की पावर मतलब ये जो 4 4 के सेट हैं, 4 4 के सेट कितनी बार आएंगे 504 के, ठीक है ना।
504 टाइम्स दीज 4 नंबर के सेट आएंगे, है ना। उसके बाद कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 1 2 3 दिस इज द लास्ट डिजिट, राइट। 7 इज द लास्ट डिजिट, सो दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म। ये बहुत सिंपल है। देयर इज एनी कंफ्यूजन, लेट मी नो। Shall we move ahead? Kazim, have you understood? Fine, fine. Let's move ahead now. कहीं पे confusion आएगा, please stop and second question, please see. Let x, y, z be a 3-digit number, right? These are the, not the place value, face value. X, y, z. A 3-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3. ये हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है. Then x, y, z, y, z, x and z, x, y is not divisible by. क्वेश्चंस का हर एक चीज बारीकी से पढ़ना होता है. Not divisible by is asking. So 3 9. Please try this 1 minute time. This is again an easy question, or not easy but moderately difficult question. Try this. We got this in 2020 examination. Let's try fast. ओके, लेट अस सी नाउ. देखिए, ये नंबर दिया है, ये केवल डिजिट्स दे रखे हैं 1 5 6. तो अगर हम नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 100. जो इसका प्लेस वैल्यू है, 100th पोजीशन, 10th पोजीशन, यूनिटरी पोजीशन, 100x plus 10y plus z. So this is the expansion of this. तो ये पूरा जो नंबर एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको अपन एक्सपैंड कर देते हैं. We'll expand this whole expression and when we add everything we'll get 111x, 111y and z. This will be this expression, right? We have got this. Now we have to see. We have this number 111. ठीक है? So this is factors of this whole expression. Now see, 3 से divisible है. Let's check. Divisibility rule क्या है? Add the numbers. 1 plus 1 3 होता है, so it is divisible by 3. This is not divisible by. This is not divisible by. This is divisible by. Now 37 को भी आप चेक करेंगे, so this again is divisible by 3.
एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर कोई नंबर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ए, दिस इज एनी नंबर, इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3 and 30, right? This is a concept, you can note it down. It can be like 7 7 7. Blindly you can say it is divisible by 3 also and 37 also, right? तो 37 3 हो गया, x plus y plus z, है ना, is not a multiple, it is already given, x plus y plus z is not a multiple of 3, ठीक है ना, ये भी एलिमिनेट हो गया। 9 is the option, 9 is the correct option. Please see, have you understood this? Let's check. ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखा है, दिस होल एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई प्लस जेड, राइट? तो ये एलिमिनेट हो गया। 3 और 37 हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस रूल, राइट? चेक भी कर सकते हैं आप। रिमेनिंग क्या रह गया? 9। आई होप यू हैव गॉट दिस, ठीक है? तो शैल वी मूव अहेड, प्लीज कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर 10 की पावर n प्लस 1 is 2? ट्राई दिस, 30 seconds, प्लीज ट्राई। सर इजी क्वेश्चंस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, विल गेट होल्ड ऑफ दीज इजी कॉन्सेप्ट्स, एंड इसके बाद थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई। ऑप्शंस आर फॉर n is equal to 0 only, for any whole number n, for any integer n, for any real number n. Please try this. कि बहुत सारे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं जो आप वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, एंड नीड नॉट सॉल्व द एंटायर एक्सप्रेशन लाइक दिस। वैल्यू डालते हैं, n इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की वैल्यू अगर अपन 1 डालेंगे, 10 प्लस 1 10, 1 प्लस 0 प्लस 1 अगेन 2, और 2 प्लस 1 और 100 प्लस 1, सम ऑफ डिजिट्स विल बी 2, यू गो ऑन, एवरी टाइम विल गेट द सम एज 2, राइट? वैल्यू डाल के सीधे आंसर निकाल लिया, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब जैसे इंटीजर दे रखा है, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आता है। देखिए इंटीजर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी, ये पता होना चाहिए आप, अदरवाइज विल गेट कंफ्यूज इन दीज टू ऑप्शन। रियल नंबर ही पता होना चाहिए, राइट? इंटीजर अगर होता है तो मान लीजिए माइनस में आ जाता, नेगेटिव -2, अगर यहाँ पे डालेंगे 10 की पावर -2 प्लस 1, बट 1/100 प्लस 1, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सॉरी सम इज नॉट कमिंग टू, राइट? सम इज नॉट कमिंग, एलिमिनेट हो गया, दिस ऑप्शन गेट एलिमिनेटेड। आई होप यू गॉट दिस क्लियरली, लेट अस मूव अहेड। सीसैट में प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे आप, जस्ट कीप ऑन रीडिंग, कुछ नहीं हो सकता, राइट? यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यूपीएससी एग्जामिनेशन के अलावा स्टेट पीसीएस, टीडीएस एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। हाउ मेनी जीरोज आर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? दिस एक्सप्रेशन you have to find how many zeros are at the end. Try to solve this.
Please try fast. Out of time, please try. लाइक अगर आपको क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ जीरोस कोई भी नंबर है, मान लीजिए 900, कैन सेपरेट इनटू दिस 900, और 100 के प्राइम फैक्टर्स आप निकालेंगे तो इट विल बी लाइक पेयर्स ऑफ 2 and 5, और यू कैन से 10 की पावर कितना है, 10 की पावर x, 10 की पावर x, जितने टेंस होंगे उतना ही जीरो एंड में होगा। टेंस कितने होंगे, जितने 2 और 5 होंगे, 2 और 5 के पेयर्स, वी हैव टू सी हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 2 and 5 आर देयर, वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, राइट। इसका प्राइम फैक्टर 1 है, इसका 5 है, बाकी इसमें देख लीजिए 5 into 2, 5 into 3, इस तरह से आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, देन फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 5 and 2, वेरी सिंपल। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? प्लीज कंफर्म। या प्लीज। I've calculated this, सारे नंबर्स को लिखा है मैंने। 10 का 5 2 है, 5 3 है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, पावर 2 है ना, 2 बार लेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 5s आर देयर। टूज देख लीजिए, 1 2 3 5 6 7 9 10, 10 2s आर देयर, ठीक है ना, आपके सामने किया है। नाउ मिनिमम कितना होगा, 2 और 5 का कितना पेयर बन जाएगा, तो 10 पेयर, दिस इज द आंसर। गेट दिस? क्या थोड़ी मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में, तो दोबारा से हाफ पेज पे वी कैन ट्राई अगेन, दिस इज द आंसर, राइट। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का एक इंटीजर होगा, के एंड में कितने जीरोज हैं। प्लीज ट्राई दिस, सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, प्लीज ट्राई फास्ट। Got the answer? These are the options: 50, 55, 100, 200. Please try fast.
अब इसमें देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, 2 और 5 के पेयर्स देखने हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 2 एंड 5 यू कैन गेट, राइट। अब एक्सप्रेशन को अगर आप देखते हैं तो यू विल सी नंबर ऑफ टूज आर मोर, 2 की पावर 4 हो गया यहाँ पे, और 8, 2 की पावर 16 हो गया, तो यू सी 2 विल बी disproportionately high, will be high. So number of pairs will be basically number of fives, the whole expression, right? Number of fives कहाँ से निकालेंगे, तो 5, 10, 15, 20, 25, it will have 5, right? So 5 की power 10, 10 plus 10 plus then again 10 की power 20, so it's what 5.2 की power 20, तो 5 की power 20 हो गया plus 20, this is 5.3 power 30, this is plus 30, this is 5.4 की power 40, in 40 here, 5.5, 5 square, what 100, this is what power 100, so this 30, 30, 60, 100 and plus 100, 200, this is the answer. Get this, right? Very easy concept. How many consecutive zeros are there? Just see number of fives. It is not necessary every time you will have this 5 as the controlling number, it can be 2 also, it can be 5 also, right? So you have to find the minimum number of maximum number of pairs of 2 and 5. Okay, the 200 is the answer. Shall we move ahead? Let's do fast, we have limited time with us. An 8-digit number gives remainder 0 when divided by 3. How many values of B are possible? Right, use the divisibility test of 3 and find the answer. Very easy. Just see, very simple. 8-digit number hai. We have to check divisibility by 3. Add all these numbers. You will get 30 plus B divided by 3. This should be perfectly divisible by 3. ठीक है, तो B की वैल्यू 0 होगी. It will be 30 by 3. Then again 3 रहेगी, 33 by 3. We have 4 options, right? So we have 4 values possible for. I hope you have got this. Let's move ahead. Next question. In the expression 5 asterisk 4 asterisk 3 is 2 is chosen from plus minus multiply. This asterisk is an unknown operator. It can be plus, minus or multiply, right? And these operators you are choosing at most 2 times, not more than 2 times. What is the smallest non-negative value? Smallest non-negative value of the expression, right? Try this, very simple. Hit and trial method can be used here. Not logic, but when you use hit and trial, then also will start 2024 examination, last year only. Very easy question. Please try. 30 seconds. Please try. We have to find the small. ठीक है, इसको
लॉजिक से करते हैं. लॉजिक विल वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, तो अगर प्लस यूज़ करेंगे तो वैल्यू विल इंक्रीज, मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे अगेन वैल्यू विल इंक्रीज, राइट. व्हाट वी डू इज, एंड वी हैव टू यूज ईच ऑपरेटर एट मोस्ट. नेगेटिव साइन को हमें यूज़ करना है टू डिक्रीज द वैल्यू. तो विल ट्राई टू यूज इट 2 times. अगर यहाँ पे नेगेटिव यूज़ करेंगे सो डिक्रीज विल बी लेस. 2 - 1 इज जस्ट 1, राइट. 1 लाइक यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इट विल बी लेस इफेक्टिव. यहाँ पे यूज़ करते हैं नेगेटिव नेगेटिव लगातार यूज़ करिए, राइट. सो वैल्यू हैज डिक्रीज. नाउ वी हैव टू यूज मल्टीप्लाई. तो ट्राई यूजिंग -2. व्हाट 0 आ रहा है. वेरी इजी. कुछ चीज़ें ट्रायल करना पड़ेगा. इसको आप जैसे मल्टीप्लाई यहाँ करके पॉजिटिव यहाँ कर दीजिए, 2-3 बार करेंगे इटरेशंस में यूल गेट. और ऑप्शन में भी देख लीजिए ना, यू हैव द लीस्ट वैल्यू 0, डायरेक्टली हिट कर दीजिए इसको, राइट. लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन गिवन 222 power 3 power 2 is divisible by. These 4 options are given: 2 and 3 but not 37, 3 and 37 but not 2, right. So these 4 options are given. Again a reminder, if any expression is given a, it will always be divisible by. बताइए, अभी बताया था आपको. Always be divisible by 37. रट्टा मार लीजिए, और भी चीज़ें बता देंगे अभी, तो रट्टा मार लीजिए. ट्राई दिस. You can also use some tricks to solve this, right. Odd और even का ट्रिक लगा सकते. Not divisible by 2. सिंपल, आपने जो पहला स्टूडेंट बोला ना कि ये 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा, दिख रहा है. और इसको करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, राइट. हमेशा ये ऑड रहेगा. सी को अगर हम पावर पे ले जाएंगे तो इट विल बी इवन और ऑड. सही है. ऑलवेज क्या रहेगा, इवन या ऑड. दिस वन, दिस एक्सप्रेशन विल बी इवन और ऑड. ऑड रहेगा, ठीक है. ये वाला क्या रहेगा, हमेशा इवन रहेगा. तो इवन प्लस ऑड करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा कि ऑड आएगा. ऑड आएगा. ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता. डायरेक्टली ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया. और इतना करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है साफ साफ. विदाउट पिकिंग अप द पेन आल्सो यू कैन जस्ट से दिस टेक्निक आल्सो यू कैन, वेरी यूजफुल. लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. सी व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रेसीडिंग द जीरोज द वैल्यू ऑफ 30 की पावर 30. 30 की पावर 30, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन बन रहा है एक्स वाई जेड ए 0 0 0, नंबर बन रहा है. ठीक है. तो व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रेसीडिंग द जीरोज, दिस डिजिट दे आर आस्किंग. प्लीज ट्राई दिस. पैटर्न्स ऑब्जर्व करके, पूरा तो नहीं निकाल पाएंगे ना, पैटर्न ऑब्जर्व करना है और उससे एक्सट्रापोलेट कर देना है. ट्राई दिस.
राइट, आखिरी में जो जीरोज होंगे इट विल बी बेस्ड ऑन हाउ मेनी टेंस वी हैव, टेंस वी हैव और 30 इट 3 इंटू 10 पावर 30 30, right? This will always be having zeros. Remove this. You have to find 3 to the power 30. Which number is that? Very simple. Power 30. Now use the pattern here. Find the answer. Try Aditi. You try. वन 3 की पावर 30 में लास्ट डेट कैसा आएगा? पावर 30 में लास्ट डेट कैसे निकालेंगे? तो 3 की पावर 1 2 9, you have 7 as the last digit, पावर 4 में 1 is the last digit, 4 का पेयर बन गया. This keeps on repeating. 4 4 के पेयर में you'll see 3 9 7 1 getting repeated the unitary place, right? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 4 वी हैव? 30 डिवाइड बाई 4 करेंगे 7 पेयर्स और उसमें रिमाइंडर बच गया 2. टू नंबर्स आर लेफ्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड. दिस द नाइन्थ द यूनिटरी प्लेस डिजिट आंसर. चलिए मूव हेड. यदि 7 आप बोल रहे हैं, 7 नहीं 9 है. डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट? यदि आपको 7 एंड जस्ट बी केयरफुल, यहाँ पे 3 की पावर 0 नहीं यूज़ करना है, तो 0 1 होता है. तो जो आप बेस बनाओगे, जैसे आपने यहाँ से चालू किया 1 3 9 7 का पेयर बन जाएगा. तब जहाँ से आप चालू करेंगे दैट विल बी एज द पेयर 3 9 7 1. अगर आपने यहाँ से चालू कर दिया, सो दिस 1 3 9 7, देन यू हैव टू कंसिडर 0 ऑल्सो एंड देन इट विल बी लाइक 31 numbers. Next, let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. Very simple. 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? How many values of x are possible? Please try. Simple question. Options are given: 10, 11, 12, infinity.
जैसे वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन है टू डिविजिबल बाय एक्स, यू हैव टू चेक व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। को डिवाइड करेंगे, अगर इसको आप ब्रेकअप करेंगे 7x बाई एक्स प्लस 9x इंटू 6 बाई एक्स, तो ये डिविजिबल ये वाला। अब हमें देखना 96 से डिविजिबल है कि नहीं 96 को x डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं, राइट, वी हैव टू सी दिस। 96 डिवाइड कर पा रहा है, इसके लिए वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 96। वेरी सिंपल, फैक्टर्स हमने निकाला, राइट, सो 2 की पावर 5.3, 2 की पावर 5.3। अब नाउ सिंपली वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस यूजिंग दीज फैक्टर्स, कितने नंबर्स हो सकते हैं, राइट। तो एक तो 1 हो सकता है, 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर, 1 लिख दिया हमने, तो इसलिए 2 की पावर 0 को हमने 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 को यूज़ करेंगे तो 1 आएगा। देन 2 आ गया, 4 आ गया, 8, 16, 32, 90, मतलब 32 तक आएगा 96 बाद में आएगा। देन 3 को यूज़ किया, 3 2 6 हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 12 20। कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो आई थिंक वी आर गेटिंग 12 आ रहा है। वेरी सिंपल, थोड़ा सा इसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर आप छोटा सा चूक गए तो विल गेट, अगर आपने 1 को मिस कर दिया तो 11 आएगा, अगर आपने 96 मिस कर दिया तो 10 आएगा, राइट। तो कॉम्बिनेशन अच्छे से बनाने हैं, देन विल गेट द राइट आंसर। आई होप यू हैव गॉट दिस। लेट अस मूव अहेड क्विकली। If P, Q, R, S are distinct single digits, positive numbers, they are single digit and they're positive number. So what is the greatest value of P plus Q, R plus S? ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। जब भी स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट का क्वेश्चन आए, ट्राई टू यूज हिडन ट्रायल मेथड, पुट द वैल्यूज, do some commutation combination, try with different values, get the right. Please try this, 30 seconds for you. सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? दिस कैन बी सिंगल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस क्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे कैसे? ग्रेटेस्ट नंबर करेंगे हम, ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ वी हैव टू यूज दिस इन, कैन बी पी आर एस, ऐसे वैल्यू भी ले सकते हैं। ट्राई करिए, 6 + 7 मल्टीप्लाई बाई 8 + 9, 14 डॉट फाइंड दिस। करेक्ट, राइट। तो अगर मैंने देखिए रैंडमली पी क्यू आर एस को लिया, सो वी गेटिंग 221 हेयर। जनरली क्या होता है मैथमेटिक्स में, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना, मैक्सिमा और मिनिमा जो होते हैं वो ग्राफ में प्लॉट करेंगे, क्वेश्चन होता है तो उसको, तो अगर आप पैटर्न्स देखेंगे, जैसे तो अगर अपन करें 6 7 + 9 गेट 50, सेम नंबर आ रहा है, तो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरली इस टाइम पे मैक्सिमा आता है, या हो सकता है मिनिमा भी आए, नेगेटिव एक्सप्रेशन। तो दिस पैटर्न यू कैन कीप इन माइंड, दिस कॉन्सेप्ट यू कैन कीप इन। तो 15 क्रॉस 15 कितना हो जाएगा? इसका भी मैंने ट्रिक बताया था लास्ट टाइम में, 3 स्क्वायर करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, आखिरी में 25 आएगा, वी नो बाय डिफॉल्ट 25 आना है। 15 से मतलब पहला जो डिजिट है इसका 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 1 इंटू 2। ऐसे अगर आपको 75 का स्क्वायर करना है तो आखिरी में 25 आएगा, दैट इज श्योर। 7 के बाद 8 आता है, 7 8 से 56, 5 6 आंसर। यहाँ पे 225 इज आंसर, बी इज आंसर, राइट। अदिति सिंह 224, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही थी आपको यहाँ पे? हाउ गेटिंग 225, प्लीज कंफर्म। हिडन ट्रायल करेंगे तो हमने फिर बना के
Color 220. Let us move it. 2-3 questions are left. Let us do it very fast. Each digit of a 9-digit number is 1. 9-digit नंबर है और each digit is 1. अब इतना लंबा सा एक्सप्रेशन बना के दे रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है. तो 111 लिख दीजिए. दिस अ नंबर. ऐसे भी तो लिख सकता था यूपीएससी, स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखता है. तो थोड़ा सा मेंटली मतलब एंगेज करने की कोशिश करता है, राइट. डोंट गेट डीमोटिवेटेड और राइट, जस्ट लीव द क्वेश्चन व्हेन यू बिग स्टेटमेंट्स. बट उसको सिंप्लीफाई कर देंगे एक्सप्रेशन फॉर्मेट में, इक्वेशन फॉर्मेट में, देन इट बिकम्स वेरी सिंपल, राइट. इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. इटसेल्फ मतलब क्या, इसी को अप्लाई कर दिया. व्हाट इज द सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, सब निकालना है. इसको ट्राई करिए. अगेन पैटर्न्स का यूज़ करिए. कोई बिग चीज़ है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. स्मॉल चीज़ को मल्टीप्लाई करके जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न, देन एक्स्ट्रापोलेट इट फॉर दिस. सुप्रिया सिंह 81. गुड. बाकी लोग प्लीज ट्राई करिए. many times you have to see the patterns. UPSC CSAT is not very difficult. कैट लेवल क्वेश्चन ही, थोड़ा सा लॉजिक होता है, थोड़ा सा ट्रिक होता है और थोड़ा सा पैटर्न्स होते हैं, राइट. तो जस्ट सी 1 into 1 is 1, 11 into 11 is 120. अगेन 3 times 11 लेंगे तो ये आ रहा है. वी जस्ट ऑब्जर्व अ पैटर्न. सेम विल applicable here. There are 9 numbers here, so 1 to 9 and again backwards 1. का सम निकालना है, सम निकालेंगे, it will you got the right answer. Let us move ahead. We have 3 more questions left. Let us do okay, minimum number of questions he is asking. We discussed this initially. See, reading comprehension का I would say comprehension में खुल के खेलिए. You can take the risk because ultimately UPSC का GS का तैयारी आपने किया होगा. You have done lot of reading. रीडिंग से क्या होता है कि एक माइंड का मतलब एक स्किल आ जाता है, to read fast and comprehend things. So here I think you can attempt 20-25 questions very easily. में से 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे, मान के चलिए. यूपीएससी के आंसर की में कुछ गड़बड़ होता है, कोचिंग वाला कुछ देगा, यूपीएससी कुछ और देगा, राइट. कैन बी अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस का कैन बी फर्स्ट माइलस्टोन. देन लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में अराउंड 15 क्वेश्चंस दे आस्क अराउंड 15 क्वेश्चन में से लगभग 7 क्वेश्चंस वी कैन टारगेट, अराउंड 7 क्वेश्चन. एंड देर मॉडरेटली डिफिकल्ट, not very difficult, moderately difficult. 7 to 10 questions, right. Then we have quant or maths. Here we have around 35 to 40, including data interpretation, around 5 questions of data interpretation, right. So 10 questions from here, 7 to 10, 18, 20 questions here, and here we can target around 10 questions, 10 to 15. The biggest catch here will be to choose the right question. Out of these 40 questions, you may waste your half an hour and not able to solve even one question. We have to be very choosy. Low hanging fruits, like if you solve some easy topics like average, percentage, right, time and work, time and distance,
There are some easy topics. Even number system is also easy. We are solving so many, okay? And we have seen how easy questions are there. Just we have to identify the patterns, identify the logics, right? And sometimes you have to put the values and the answer, right? There are also difficult questions. You have to leave them, right? So out of 40, you can attempt 10 to 15. Very easily lower scale पे आप देखेंगे +7 +10 35 क्वेश्चन, 18 +10. नेगेटिव मार्किंग भी होगा इसमें, नेगेटिव मार्किंग भी होगा. वी हैव टू टेक अकाउंट. हायर एंड पे देखेंगे +10 +15 45 क्वेश्चन. दिस आई थिंक सेफ बेट. क्या किस ऑर्डर में करना है दैट इज अप टू यू. टाइम्स पीपल डू क्वांट फर्स्ट. रीजन इज कि एंड टाइम में इतना हड़बड़ी हो जाता है ना, मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता. सच काइंड ऑफ प्रेशर इज देयर. सम पीपल डू इट अर्ली, फर्स्ट टाइम क्वांट करते हैं, फिर रीजनिंग करेंगे या रीजनिंग और क्वांट पहले कर लेंगे, देन दे कम टू कॉम्प्रिहेंशन. समटाइम्स पीपल डू कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज क्विकली दे टारगेट टू कंप्लीट 1 आवर, पूरा कर देंगे 1 आवर के अंदर. दैट इज द स्ट्रेटेजी. एंड देन ईजिली लाइक दे विल बी वेरी रिलैक्स्ड कि अब ठीक है हो जाएगा. तो दे डू. इट इज अप टू यू एंड टेक द डिसीजन इन द एग्जामिनेशन. दिस इज वेरी डिफिकल्ट. वी कैन टारगेट दीज टू फर्स्ट. 2023 में 23 एग्जामिनेशन, दिस वाज वेरी डिफिकल्ट, राइट? So people skipped this and directly come, right? Questions and books वगैरह की बात करें अगर, तो अभी का टाइम ऐसा है, we have the examination ahead. बुक्स वगैरह रेफर करनी जरूर. इवन इफ यू वांट टू रीड सम फॉर्मुलाज एंड ऑल, यू कैन रीड इंटरनेट. आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है, आर.एस. अग्रवाल, वो भी आप कर सकते हैं, बट इट इज एक बिट एडवांस. बहुत सारे तरह क्वेश्चन. currently we can focus on people. That is a safe bet. Moving ahead, what is the sum of all digits which appear in the digits from 10 to 100? ये थोड़ा सा ऑलरेडी डिफिकल्ट या डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं. सम ऑफ ऑल डिजिट्स फ्रॉम 10 टू 100. वी डोंट हैव टू फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स. के बीच में कोई डिजिट होगा, 54 इज अ नंबर बिटवीन देम, का भी सम 5 + 4, ठीक है ना? ट्राई दिस, इट्स अ गुड क्वेश्चन. Such kind of questions may take your time in the examination. If you feel like this will take a lot of time, skip the question. Try this. Good question. Here are almost of the session. One more question there. Try this question. It was asked in 2023 examination. The
8. Azim, you also try. 30 seconds, please try. Good. Supriya got the right answer. Got the right. ये आपको समझ में आया? We'll move ahead. इसके लिए क्या करना है? सारी चीज़ को खोल देना है एक्सप्रेशन में. Represent this in the numbers format. There is a pattern. सब डिजिट्स का नंबर सम निकालना है, तो यूनिट डिजिट पे आते हैं. 0 1 2 का सम आ गया 40. There is a formula. There is an arithmetic progression with the difference as 1. राइट, नेचुरल नंबर्स का अगर सम करना है तो n + 1/, तो नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 9 तक है, इक्वल टू 9 10/2. राइट, तो 45 इज द सम. मान लीजिए इसका 45 है यूनिट डिजिट का, ये सारे ये है 9 405. सिमिलर 10 का कर देंगे आप, 10 से मल्टीप्लाई होगा 450, देन 1. इसका है 100 था, वो हमने दिया नहीं है. लेट्स मूव हेड. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अ गुड क्वेश्चन अगेन, वाज आस्क्ड इन आई थिंक 20 एग्जामिनेशन. जब पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था तब की बात हो रही है, ठीक है ना? बहुत डिफिकल्ट आया था. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. Let PP, QQ and RR be a two-digit number. Be two-digit number. These are two-digit numbers. Where P is less than Q is less. Right? If PP plus QQ plus RR equal to TT0. TT0. Where TT0 is a three-digit number ending with 0. आखिरी में 0 है और TT unitary place, the tens and hundreds place. Right? Consider the following statements. दो statement दे रखे हैं, ध्यान से. First statement is number of possible values of P is equal to 5. Number of possible values Q 6. Identify this is correct or this is correct or both are correct or both are wrong. Please try. Easy question, not easy question. It is a difficult question, but you can make it easy. You break the things. We are saying देखिए PP कोई नंबर है, QQ नंबर है, जैसे 11, QQ कैन बी 22, RR कैन बी 3. ठीक है, रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं आप. 9944, they are two digit numbers and this condition is given P is less than Q is less.
एंड दिस एक्सप्रेशन इज देयर, ठीक है। और ये बोल रहा है 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? 330 हो सकता है, 440 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंडिंग विद जीरो, ठीक है। नाउ इट इज सेइंग कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, दिस स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर। 30 seconds, right? देखिए ऑब्जर्व करिए, पी पी क्यू क्यू आर आर 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 99। पहले आप जाएंगे 8 आर आर विल बी, पी पी इज 7, लेट अस अज्यूम दिस, रैंडमली हमने मैक्सिमम ले लिया, ठीक है। तो टी टी जीरो, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? अगर आप 99 मान लीजिए तो 99 इंटू कर देंगे कितना है? तो 221 आ रहा है, यानी कि इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं जा सकती। तो भी अगर आप जस्ट ऐड दीज, राइट, और आया, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 264, यानी कि इसके बाद जो भी चीज़ होगी, ठीक है, दैट इज रिडंडेंट कंप्लीटली। टी टी जीरो क्या हो सकता है? कैन बी 110 और 22, राइट। क्या आगे तो जा नहीं सकता, 330 जाएगा तो वॉलेट हो जाएगा ये चीज़, राइट। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी टी जीरो है, इसी को यूज करके विल फाइंड द, राइट। तो पी 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 क्यू 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 आर आर इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करते हैं, क्या होगा? 10p प्लस p, 10q, व्हाट 11 आर 11। अब नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू टी टी जीरो। टी टी जीरो की दो वैल्यू हो सकती हैं, 110 और 220, केस वन केस टू, राइट। केस वन लेते हैं पहले, केस वन 110 वाला, 110 का ले लेते हैं, ठीक है। वन पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू वट 10, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 10। अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? देखिए, अगर हम लोग पी को 5 6 7 ले लें, अगर 5 6 11 हो गया एक बार में, इसको वैलिड कर दिया, यानी कि क्या ले सकते हैं? 4 5 6 ले लें अगर, 5 4 9, ये भी वैलिड हो गया, ठीक है। चलिए छोटे से आते हैं, 1 2 3 लेते हैं, 3 4 लेते हैं, 3 4 लेते हैं, 7 2 9 नहीं, 3 4 5, 10 सम करना है। क्वेश्चन में दे रखा था कंडीशन पी इज लेस देन क्यू इज लेस देन आर, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि 10 आ जाए, राइट। थिंक ऑफ द कॉम्बिनेशन। मान लीजिए 4 ले रहे हैं, 4 5 4 एंड 1, 1 4 5। देखिए क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, पी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, पी की वैल्यू पूछ रहा है, ये समझिए। पी की वैल्यू क्या हो सकती है? पी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अगर 4 कर देते हैं तो 4 के बाद क्यू 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अगर 3 है, 3 के बाद 4 है, 5 है, राइट, अगेन वैलिड हो जाएगा। 1 और 2 में ही आई थिंक कैन फाइंड द कॉम्बिनेशन। 1 के साथ अगर आप कॉम्बिनेशन कैन 4 एंड 5, 2 के साथ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 3। गेटिंग वी हैव गॉट 2 वैल्यूज, पी की 2 वैल्यू। इतना समझ में आया आप लोग को? देखिए एक बार जी, मैं आपको समझ, यानी कि p की वैल्यू 1 और 2 ही हो सकती है इफ यू हैव टू सेटिस्फाई 110।
110 का पहला केस लिया है, पी की वैल्यू 1 और 2 ही हो सकती है। अगर हमने 3 ले लिया पी की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर आपने इसको 3 ले लिया तो क्यू की वैल्यू उससे ज़्यादा ही होगी, 4 हो सकती है। एंड आर की वैल्यू क्या होगी? उससे ज़्यादा होगी, 5। ये तुरंत वायलेट कर जाएगा, 5 + 4 9 और 12 वायलेट हो गया। तो कम ही लेना पड़ेगा, दैट मीन्स देयर आर 2 वैल्यूज पॉसिबल है, 1 एंड 1 एंड दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस, सेम चीज इज इक्वल टू 2 to 0, ठीक है, प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 2 0 11 हेयर, राइट। सो पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू व्हाट? 20। अब यहाँ पे देखिए क्या पी की वैल्यू हो सकती है ऐसी। अगर अपन इसको 7 ले लें, 7 8 और 9, इट विल वैलिड 20। 6 7 8 ले लें, अगेन 15 एंड 21, इट विल इवन अगेन वैलिड। 5 ले सकते हैं, 5 में कॉम्बिनेशन, 5 के साथ 7 लगा दिया, फिर 8 लगा दिया, तो 5 और उससे पहले वाले जितने भी पी की वैल्यू है सब आप लेके कॉम्बिनेशन 1, ठीक है। पी की 5 वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल रही, आर यू गेटिंग दिस अदिति तजीम? अब पी की 5 वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे पी की 2 वैल्यूज मिल रही थी, कौन सी? 1 एंड 2। तो ओवरलैप है, 1 एंड 2 यहाँ पे भी है, 1 एंड 2 यहाँ पे भी है। तो नेट पी की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? 5 वैल्यूज हो सकती है, राइट। तो स्टेटमेंट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी इज इक्वल टू 5, दिस इज करेक्ट, राइट। अब सेम तरीके से नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? की वैल्यू देखें हम लोग, तो प्लस क्यू 10, फर्स्ट केस में क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं, और मे बी वैलिड वैलिड को ही यूज़ करके हम लोग करते हैं, लेते हैं 3 और 7 हो गई, वैल्यू ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 9, 1 से 4 तक ले सकते हैं। समझ में आया? कॉम्बिनेशन बनाने हैं बेसिकली। यहाँ 4 रखा आपने, 4 से ज़्यादा 5 है, कम लेना है तो 1 ले सकते हैं, और इससे पहले वाली सारी वैल्यूज 4 वैल्यू हो सकती है। सेकेंड एक्सप्रेशन इक्वल टू 20, ठीक है, वैल्यू ले सकते हैं। हायर वैल्यूज पे जाते हैं, पहले 8 पे चले, नाइन कर दें। अगर इसको 9 करेंगे तो 8 तक जा सकते हैं, 20 विल गेट द वैल्यू, है। अगर आप 8 रखते हैं तो 1 से लेकर 8 तक आ जाएगा, 1 से लेकर 8 तक आ जाएगा। 1 2 3 4 कॉमन आ रहा है, तो 8 वैल्यूज पॉसिबल है। 6 दे रखा है, तो देखिए कहाँ पे पेज फंस रहा है। हमारा 8 आ रहा है और यहाँ पे 6, एक तो नहीं है, चेक। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वाइंड अप नाउ। तो समझिए पेज फंस क्या रहा है, पेज ये फंस रहा है कि पी और क्यू साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने चाहिए। तो आपने जो पी का बोला कि पी की वैल्यू 1 और 2 है, उसके साथ ही क्यू की वैल्यू आप लिखेंगे। जैसे जब पी की वैल्यू 1 और 2 होगी तो
क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 2 and 3, राइट। जब यहाँ पे आएंगे हम लोग, पी की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 2 3 4, राइट, 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 और 2, सॉरी 2 और 3, 3 4 5 वैल्यू। देखिए ऑप्शन में दे रखा है कितना, 6, अभी भी फंसा रहा है पेज। अब देखिए कहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, लेट्स चेक। चेक करिए, प्रिया, अदिति, नजीम, देखिए वाइंड अप करते हैं फिर, ट्राई ट्राई। अब सब लिखते हैं, 10, अब 10 हमें लेके आना है, राइट, 10 लेके आना। तो क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। 2 की वैल्यू 3 रख सकते हैं, 6, 4 रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। ये satisfying this condition less than q, there are 3 values है। अगर आप 5 रखते हैं यहाँ पे तो 5 के बाद 6 आएगा, अगेन कंडीशन गेट्स वायलेटेड, राइट। q is 3 4, you have 3 values here, साफ साफ लिखा जाता है। पंकज इज आस्किंग क्लास कब से चल रही है, ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द क्लास, वील अपलोड द वीडियो लेटर। सो दिस 3 values for q, नाउ द सेकंड कंडीशन p q r इक्वल 20, जैसे इसमें क्या रख सकते हैं हम लोग, पहले तो 2 रख के देखते हैं, 2 रखा, 1 तो रख नहीं सकते, अगर 1 रख देंगे तो p क्या होगा, 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। 2 रखा, इसको 1 रखा, इसको क्या रख दिया, क्या रखेंगे, 17 रखना पड़ेगा, बट दे आर सिंगल डिजिट्स। लेट अस मूव अहेड, एक बल्क में आगे बढ़ते हैं, 5 रखते हैं, 5 4 5 4 9 हो गया, देन वी हैव टू गिव 11, तो 5 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट। 6 रखें, उसके बाद यहाँ 4 लगाया, सॉरी 5 लगाया, यहाँ पे 9, दिस इज पॉसिबल। 6 7 रखा, फिर 8 रखा, फिर 9, 9 रख पाएंगे, 9 पर 10 आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो नॉट। 6 7 8, 6 7 8 यहाँ पे ट्रिपल कॉम, पहले 6 आता है, 13 हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितना है, 6 7 एंड 8,
6 7 8, 3 यहाँ से निकाला हमने, 3 यहाँ से निकाला, वी हैव कार्डिनल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 6 इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। गॉट दिस क्वेश्चन, इट वाज अ लेंथी क्वेश्चन, इट रिक्वायर्ड सम पेशेंस, सम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है और कहीं आप अटक गए, जैसे अभी अटके थे हम लोग, आपके साथ लाइव सॉल्व किया जा रहा था, थोड़ा बहुत अटक गए थे बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ लाइक कॉम्प्लेक्स यूज ऑफ स्पेस, हाँ तो साफ साफ लिखिए, एकदम क्लियर करो, जहाँ अटक गए तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए, नॉट मोर देन 5। ये हम लोग आगे बढ़े, इसमें हम लोगों ने निकाल लिया है सर। सूत्रा फॉर टुडे इज डोंट गेट एंटैंगल्ड इन वन क्वेश्चन, डिफिकल्ट लगे छोड़ के आगे बढ़ जाइए, यही है तरीका सी सैट निकालने का। अदरवाइज क्वेश्चन करने में ईगो पे ले लिया कि करके रहेंगे कुछ, भाई हम तो आईआईटी से हैं, करके रहेंगे कुछ, फंस गए अगर एक छोटी सी जगह पर, पूरा टाइम खा जाएगा। जहाँ आधे घंटे में एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ आपका, या एक क्वेश्चन हो भी गया आधे घंटे लग गए, तो फिर सारा कॉन्फिडेंस, टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि अगर आप क्वांट में 10 क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं, रीजनिंग 6 7 क्वेश्चन कर लिया आप, आखिरी में बचा आपका कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चन, वेरी कंफर्टेबली विल। With this, we are at the end of the session. I hope you enjoyed this. We'll meet again mostly by tomorrow, शायद. Let you know. Here's the CSAT portion. Sabhi bhai. Thank you for joining. Best wishes for